She is having so much responsibilities. She is looking after so many kids, and she is managing the total house all alone. She remains busy whole the day. She takes care of gardening, cleaning, cooking, arranging the house, taking care of the kids. How many children are there in with you, Neha? सर मेरी my sister daughter. Okay. How many? Do you know the meaning of how many? सर कितने. Rupalji, how many kids do you have? Sir, I have two kids. आपके कितने बच्चे हैं? मुझे दो बच्चे हैं. Okay. Who is elder one? My son is elder one. What is his name? And sir, her name is Ayush Agarwal. अच्छा, Sorry, हर नेम. sorry for her. थोड़ी देर पहले तो वो लड़का था, अब स्त्री कैसे हुआ? No, sir, he is Ayush Agarwal. आपने बोला ना हर नेम इज आयुष अग्रवाल. Sorry, sir. His name is Ayush Agarwal. एंड हु इज द सेकंड वन? Second is my daughter. She is व्हाट इज हर नेम? her name is Aradhya Agarwal. हाउ ओल्ड इज शी? She is 20 years old. एंड हाउ ओल्ड इज आयुष? Ayush is 22 years old. So there is 2 years of difference between both the children. Yes, sir. यस सर. एक सुझाव है, सभी को है, केवल आपको नहीं. दोस्तों, अगर आप यस सर और नो सर बोलना चाहते हैं तो 1500 रुपये महीने मत खर्च कीजिए. प्लीज डू नॉट स्पेंड 1500 रुपीज पर मंथ. आई कैन टीच यू यस सर नो सर free of cost. If you want to learn yes sir, no sir, I will teach you one more word in offer. One offer is going on, Diwali offer. I will teach you yes sir, no sir, and last word is thank you sir, free of cost. This is Diwali offer, Diwali bonanza. This is Diwali bonanza. Bonanza, correct. Thank you, Google. You are taking correct spelling. So there is a Diwali bonanza. Learn yes sir, no sir, free, free, free. One extra word. Thank you, sir. Free, free, free. How many members are there in your family, Neha? Sir, 8 members in my family. Very good. Namrata, how many members are there in your family? Sir, 5 members are Very there in good. my family. Shivang, how many members are there in your family? Sir, may I Sir, try? There are 5 members in my family. शिवांग, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया बेटा? हमने नहीं बोला. लता दीदी की आवाज निकाल लेते हो. Mimicry. मिमिक्री. There are 5 members in my family. Namrata Didi, how many members in your family? How many members in your family? Sorry. Okay, Kalpana madam will ask again to anybody. Who is ready to answer?
I'm ready to answer. Namrata, how many members are there in your family? There are 5 members in my family. Sorry. Google is taking plural number, but I am listening singular numbers, so you decide what are you saying. Come again. Plural, there are 5 members in my family. Plural number, members. Google is saying members. My CC is on, but Kalpana madam can also switch on her CC. There is one option on the screen on the computer. Actually, she's attending the class on computer. A very big letter comes on the screen of computer. On the mobile, very small letter comes. Namrata, please ask. Neha, how many members are there? Namrata Di, there are 8 members in my family. Rupal ji, how many members are there are in your family? Can you come again, Neha ji, please? Rupal ji, how members Sorry. there are in your family? Okay. Shiva, ask the next question to somebody. Namrata Didi, what should be the verb for confuse hona? The verb for confuse hona should be get confused. Neha, what should be the second form of get confused? So the second form of get confused should be got confused. Rupal ji, what should be the third form of get confused? The third form confused should be got confused. Got confused. Good morning, Rupal ji. Rupal ji, Good morning. सर नहीं आ रहा मुझे. Ask to somebody, Rupal ji. Shivang, what should be second form of confuse? Sorry. What should be second form of confused? Okay. Shivang, Shivang, are you getting confused? No, sir, I am not getting confused. क्या आप confused हो रहे हैं? नहीं सर, confused नहीं हो रहा. Thank you. Namrata Didi, are you getting confused? Yes, Shivang, I am getting confused. दीदी क्या आप कंफ्यूज हो रही हैं? हाँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. नेहा, are you getting confused? no, Namrata Di, I am not getting confused. नेहा, क्या तुम कंफ्यूज हो रही हो? नहीं Namrata Di, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ.
Rupal ji, are you getting confused? Yes, Neha, I am confused. I'm getting confused. Rupal ji, क्या आप कंफ्यूज हो रही हैं? हाँ नेहा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हम्म, शिवांग, आर यू गेटिंग कंफ्यूज? रूपल जी, आई एम रेस्ट। Sorry, सर दिख नहीं रहा था इसी कारण। रोशनी, रोशनी, आर यू गेटिंग कंफ्यूज? नो, आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। रोशनी, क्या आप कंफ्यूज हो रही हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही। Roshni, madam is also attending the class. मैम, आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? गुड Okay, मॉर्निंग मैम। No, I am not getting confused. मैम, क्या आप कंफ्यूज हो रही हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ। Sir, are you getting confused? yes, sometimes I am getting confused, but sometimes I am not getting confused. सर जी, क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ और कभी कभी मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा। थैंक यू। Shivang, who is confusing you? sir, Vaibhav is confusing me. आपको कौन कंफ्यूज कर रहा है? मेरे को वैभव कंफ्यूज कर रहा है। बता दीदी, who is confusing you? Amrita didi, are you there? Yes, Zivang, I am here. People get confusing me. Sorry. Come Change again, the please. person. Change the person, please. Roshan didi, who is confusing you? रोहन इज कंफ्यूजिंग यू। रोहन इज कंफ्यूजिंग मी। दीदी, आपको कंफ्यूज कौन कर रहा है? रोहन मुझे कंफ्यूज कर रहा है। रूपल जी, हु इज कंफ्यूजिंग यू? सविता इज कंफ्यूजिंग मी। रूपल जी, आपको कौन कंफ्यूज कर रहा है? सविता मुझे कंफ्यूज कर रही है। मैम, हु इज कंफ्यूजिंग यू? Nobody is confusing me. मैम, आपको कौन कंफ्यूज कर रहा है? मुझे कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा है। Ma'am, that's the same sentence I was want to tell, but I confused, and I'm not getting. Who I just want to inform you, हमने इन लोगों को वो वाला इंटरेक्टिव सेंटेंस नहीं दिया है कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसा कोई इडियम इनको दिया नहीं होगा। मिला है Okay. ना? नहीं मिला Ma'am, you है। have spoken out of my mouth. Okay. Uh, Namrata, who is confusing you? Actually, Neha was Somebody is confusing me. Neha is rest. Neha, who is confusing you? Ma'am, Ria is confusing me. नेहा, तुमको कौन कंफ्यूज कर रहा है? मैम, मुझे रिया कंफ्यूज कर रही है। रूपल जी, हु इज कंफ्यूजिंग यू?
रूपल जी is done, I think. Sir, who is confusing you? Is anybody rest नाम का कोई सेंटेंस अपन कभी कभी बोलते हैं क्या, या who is rest ऐसा कुछ? Who, सर कभी कभी तो who, बोलते हैं। who is rest? आर्म रेस्ट। I'm rest. Shivang, Rest. Shivang, who is confusing you? शिवांग You से did the round. पहले शिवांग, you will be the last candidate बेटा. You will have to ask me at last. Good morning, Neha. Who is rest? हाँ नेहा, कहे को नेहा लगाए. Neha, Yes, ma'am. ask. Ma'am, है लेकिन I'm कौन done. से I'm है done. वो पता नहीं. I'm done. sir, who is confusing you? हे भगवान, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. दोस्तों अभी मैंने अपने आप को अनपिन कर लिया है, तो मुझे यहाँ 6 लोग दिखाई दे रहे हैं. लेफ्ट में नम्रता येलो सूट में है, उसके बाद नेहा कॉफी कलर का टॉप पहने हुए है. ऊपर तीसरे नंबर पे रूपल जी की केवल मुंडी दिख रही है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता. नीचे लेफ्ट में KALPA लिखा है, जो फुल फॉर्म है कल्पना. केवल एक चित्र दिखाई दे रहा है ऐसे करके, कल्पना मैडम का. फिर उसके बाद शिवांग भी ऐसी ही एक्टिंग करते हुए दिख रहा है बीच में. उसके बाद यहाँ लास्ट में नीचे रोशनी स्माइल करते हुए दिख रही है. रूपल जी ने अभी अपनी खिड़की बंद की थी, कारण जो भी हो. अब उन्होंने खोल ली है, वो किसी से बात कर रही हैं, पूरा ध्यान उनका वहां पे है. जबकि नेहा किसी से बात नहीं कर रही है, फिर भी उसका ध्यान नहीं है. रोशनी दी, अरे Who is भैया, अब क्या करें भैया, कचरे वाला या घर से कचरा निकाल. जागो ग्राहक जागो। Good morning, Neha. जागो नेहा दीदी जागो। ग्राहक नहीं, जागो नेहा दीदी जागो। अरे यार, एक अच्छा सा फील्ड वर्क दे बेटा, तुम्हारे लिए भी शायद नया होगा. तुमने अभी बोला जागो ग्राहक जागो, इसका इंग्लिश ढूंढ के बताओ. ये फील्ड वर्क है. और शिवांग तुम्हें मिल जाए ना अगर तुरंत, तो पोस्ट मत करना, नहीं तो ये सब के सब सोते रहेंगे. तुम केवल इतना टाइप करके भेज देना कि सर मुझे मिल गया, या इंग्लिश आती हो तो आई हैव गॉट इट, बस इतना भेजना. उसको पोस्ट मत करना. देखें रूपल जी जागती हैं कि नहीं, नेहा जी जागती हैं कि नहीं, रोशनी जी होती हैं कि नहीं, नम्रता जी जागती हैं कि नहीं. क्योंकि हमें पता है तुम तुरंत भेज दोगे फाइंड करके, लेकिन भेजना नहीं, बस लिख देना मुझे मिल गया. बड़ा अजीब है इसका इंग्लिश जो है. एक्चुअली ये टेक्निकल टर्म है, तो इसका इंग्लिश बिल्कुल ही अजीब है, लैटिन भाषा में है. चलो एनीवेज, कम टू द पॉइंट। थैंक यू शिवांग. एक टॉफी और तुम गिन लेना, नोट कर लेना, अगली बार ले जाना. दीदी गुड मॉर्निंग। Who is rest? रोशनी दी, बोलो ना. Roshni is rest.
रोशनी is अरे done. नम्रता, यू आर रेस्ट। धोखे से मैडम ने तुमसे पूछ लिया। रोशनी इज डन, वो देखो बोल रही। रोशनी बोलो बेटा। नम्रता दीदी, आई एम डन। सर गुड। जागो ग्राहक I am rest. अभी बोल हाँ सकते हैं बेटा, सर। सर मिल गया। जागो का ये हो सकता है कि वेकअप कस्टमर। बेटा ऐसा इतना होगा दीदी, दीदी ऐसा होगा, वेकअप कस्टमर वेकअप। बड़े भाई, इतो आसान हो तो हम काहे पूछते, है कि नहीं? सर कोशिश की थी, ट्राई किया था। नहीं, वेरी डन, वेरी वेल डन, वेरी नाइस, वेरी गुड। ट्राई जी, ट्राई। आपने ट्राई किया, हम लोग को हंसी आई, हम लोग को हंसी आई, हम लोग की हेल्थ बनी। ऐसे ट्राई करते रहो, हम लोग हंसते रहेंगे, हम लोग की हेल्थ बनती रहेगी। आई एग्री विथ शिवांग। हाउ नेहा? Namrata di, who is confusing you? Neha, you are confusing me. सही है बॉस। Complete the process, Neha. नम्रता दी, आपको कौन कंफ्यूज कर रहा है? नेहा, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। So now all buddy. I'm rest. Sir, who is confusing you? These children are confusing me. सर, आपको कौन कंफ्यूज कर रहा है? ये बच्चे मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। Sir, is it right? My patient is confusing me. My अभी patient. देखो, अब हमारा अगला सवाल, इसलिए हमने राउंड अपने ऊपर लेके आए कि अब अगला सवाल हमारा बहुत ध्यान से सुनना। और अच्छी बात यह है कि अभी मैडम मौजूद हैं, तो तुम अगर सही जवाब नहीं दे पाए, आई विल आस्क हर। शिवांग, व्हाट इज कंफ्यूजिंग यू? Sir, my patience is confusing me. आपको कौन सी चीज कंफ्यूज कर रही है? Sir, मुझे मेरा पेशेंस कंफ्यूज कर रहा है। Ask madam. She will also give good answer, I expect, hope. Ma'am, what is confusing you? Her voice is confusing me. मैम, आपको क्या कंफ्यूज कर रहा है? मुझे उसकी आवाज़ कंफ्यूज कर रही है। To whom should I ask? Neha, You can ask who is ready. who is ready? I am ready. What is confusing you? Her dress color is confusing me. आपको क्या कंफ्यूज कर रहा है? कि ड्रेस का कलर मुझे कंफ्यूज कर रहा है। शिवांग, सॉरी, नेहा, व्हाट इज कंफ्यूजिंग यू? My head is confusing me. Come again, दीदी। Come again. My headband confusing me. Sorry, I'm not getting. Come again. Actually, there is so much noise behind Neha, that's why she is dirty. Namrata di, my headband confusing me. Complete the. Sir, what? How can head pain confuse you? Neha, Yes, ma'am. Yes, ma'am. My so head you're pain. confused कि right head is dukhing ma'am. or left? वो एक्चुअली उसका कारण ये है, मैं बता देता हूँ।
जब कभी पेट में सिर दर्द होता है तो कंफ्यूजन होता ही है। जब कभी पेट में सिर दर्द होता है तो कंफ्यूजन होता ही है। ऐसे में घुटने की मालिश करने से आराम मिलता है। रूपल इज कंफ्यूजिंग। ये लाल वाम। अगर ये वाला बाम आपके घर में नहीं आता है तो कोई दूसरा भी आता है, आप उसमें अगर देख लेंगे तो मैं नहीं दिखाऊंगा जानबूझ के, इसलिए दूर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पूरे हिंदी लिखे हुए हैं, यहाँ पूरे इंग्लिश लिखे हुए हैं, और आप एक चीज ढूंढने जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने शायद जीवन में पहली बार हेड पेन सुना है। आप में से किसी ने हेड पेन सुना है कभी? क्या सुना है नम्रता तुमने? हेडेक। ये स्पेलिंग है जो आपकी स्क्रीन पे है, HEADACHE। शिवांग, इज इट हेडेक? यस सर, इट इज हेडेक। क्या ये सिर दर्द है? सर ये सर दर्द है। नो मैम, इज इट हेडेक? यस इट इज हेडेक। मैम ये क्या ये सर दर्द है? हाँ शिवांग, यह सिर दर्द है। नम्रता, इज इट हेडेक? यस मैम, इट इज हेडेक। क्या ये सिर दर्द है? हाँ मैम, ये सर दर्द है। सर रोशनी, इज इट हेडेक? यस इट इज हेडक। तुम क्या लोग ये कितना सर दर्द है? गंदा बोल रहे हो यार, हेडक हेडक बोल रहे हो। हेडेक। ये सब, दिस वर्ड इज सो पॉपुलर वर्ड। रोशनी, क्या ये सर दर्द है? हाँ यह सर दर्द है। नेहा, इज इट हेडेक? Yes, Roshni, it is headache. नेहा, क्या यह सर दर्द है? हाँ रोशनी जी, यह एक सिर दर्द है। रूपल जी, इज इट हेडेक? यस नेहा, इट इज हेडेक। रूपल जी, क्या सॉरी यह रूपल एक सिर दर्द है? सॉरी रूपल जी। इज इट हेडेक? कम यस अगेन नेहा, रूपल जी। इज इट हेडेक? गुड मॉर्निंग नेहा। रूपल जी, इज इट हेडेक? यस नेहा, इट इज हेडेक। रूपल जी, क्या यह एक सिर दर्द है? हाँ नेहा, यह सर दर्द है। हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। ओके नम्रता दीदी। नम्रता, सॉरी, हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। नम्रता, इज इट हेडेक? नो, इट इज नॉट हेडेक। क्या यह सर दर्द है? नहीं, ये सर दर्द नहीं है। शिवांग, दर्द मत बोलिए, दर्द गानों में होता है।
Okay, go ahead, Namrata. Shivang, it is egg. Sorry, come again, please. Shivang, it is egg. Didi, are you asking? Or Yes, I am asking. Is it egg? Actually, Google egg? is not taking properly. Yes, sir indicates us. Ask egg only, not headache. Voice is chopping actually, and from Shivang's side there is so much noise. So I think there are some guests with Shivang. Some guys are talking in Shivang's place. That's उनको why बोलो he's. थोड़ा धीमे बोले शिवा. No, it is not possible. Shivang is a little boy of the family. It is not possible to say mummy, papa. Shivang can sit on the terrace, but there is no light. That upper one terrace. Namrata, ask Madam, Kalpana Madam. Ma'am, is it egg? Yes, it is egg. क्या यह दर्द है? हाँ ये दर्द है. Yes, please continue this Neha, question. is it egg? Yes, ma'am. It is egg. क्या ये दर्द है? जी मैम, यह दर्द है. शिवांग, रूपल जी, is it egg? Yes, Neha, it is act. सॉरी रूपल जी. Sorry. Is it at? सॉरी रूपल जी. Neha, come again. रूपल जी, is it egg? Yes, Neha, it is act. सॉरी रूपल जी. Sorry for pronunciation. Good morning, रूपल जी, आप बोर्ड को जूम करके देख लीजिए. हिंदी में भी लिखा हुआ है सर ने. मैम मैं यही बोल रही हूँ, एक्ट ही बोल रही हूँ. ओके, नाउ कम अगेन प्लीज. नेहा, come again. जी, is it egg? Yes, Neha, is it act? रूपल जी, क्या है? Come again. क्या दर्द है? Nehari, firstly you give 3D. Yes. 3D. Neha Didi, good morning. रूपल जी, क्या है? एक दर्द है? नेहा, तुम्हें 3 का दंड मिला है. So there you are in a line पर like draws like George और मौसेरी भाई. Speak up, Neha. Speak up, please. Like draws like George और मौसेरी भाई. I am awake, मैं जाग रही हूँ. Here you are in it. You are sleeping, you are not awake. रूपल जी, क्या यह दर्द है? Sorry, Didi. Firstly ask in English. रूपल जी, is it egg? Yes, Neha, it
is act. सॉरी। Act. रूपल जी क्या है दर्द है? हाँ नेहा, यह दर्द है। Who is rest? आर्म रेस्ट। Shivang, is it act? कम अगेन दीदी। Is it act? यस इट इज एक। शिवांग, क्या यह दर्द है? हाँ ये दर्द है बहुत ज्यादा। नम्रता दीदी इज इट एक। Yes, it is egg. नम्रता दीदी क्या ये दर्द है? हाँ यह दर्द है। सर सर is it egg? रोशनी दीदी, सॉरी नम्रता दीदी, आई एम रेस्ट। Oh. Is it egg? रोशनी, यस इट इज एग। क्या यह दर्द है? हाँ यह दर्द है। हु इज रेस्ट? सर is rest. सर इज इट एग? No, it is pain. सर क्या यह दर्द है? नहीं, ये पेन है। सो प्लीज टेक पेन किलर। यस थैंक यू, आई विल टेक। अब इसकी फोटो भेज दें का कि तुम्हारे घरे तुम्हारे गांव में भी जो मिला था। हमरे कहाँ तो मिला था सर जो। देखो सर है देखो सो लग रहा है। एक नेहा दीदी को गिफ्ट कर रही हो बर्थडे पे। बिल्कुल सर। निहारी बर्थडे इनवाइट प्लीज। एक्चुअली सर मैंने पहले हेडिट ही बोला था, तो नम्रता दीदी ने सॉरी बोल दिया था। शिवांग पूछना यहाँ से शुरू करें। रोशन दीदी हैव यू रिटन द फर्स्ट वन? कम अगेन शिवांग। हैव यू रिटन द फर्स्ट वन? यस आई हैव रिटन द फर्स्ट वन। शुड आई रेस? यस यू शुड रेस। नम्रता दीदी, हैव यू रिटन द फर्स्ट वन? सॉरी सेकेंड वन। Yes, I have written the second one. Should I erase? Yeah, sure, you should erase. Neha, have you written the third one? Yes, Namaste didi, I have written the third one. Should I erase? Yes, Namaste, you should raise. Rupal ji, have you written the last one? Yes नेहा, I written this last one. सॉरी। Rupal, should I erase? Yes नेहा, you should be erased. Who is rest? I'm rest. Namrata, have you written It's first already one? erased. It is said. सर ने अभी लिखा है। Can anybody guess the Hindi meaning of this interactive sentence? Yes, I can guess the Hindi meaning of this interactive sentence. So The Hindi here meaning you of go. The Hindi meaning of this interactive sentence is the ऐसा कहा गया, ऐसा कहा जाता है। Anybody can guess the Hindi meaning of this interactive sentence?
दिस इज क्रिएटिव इंटरेक्टिव सेंटेंस। यह रचनात्मक बोलचाल का वाक्य है। यू डोंट हैव टू स्पीक इट एज इट इज। आपको इसे ज्यों का त्यों नहीं बोलना है। वी विल प्ले 2 राउंड्स। हम 2 राउंड खेलेंगे। फर्स्ट राउंड विल बी इजी, कॉपी एंड पेस्ट राउंड। सेकेंड राउंड विल बी creativity round. I will start with Shivang. Shivang, it is said के साथ कोई एक इडियम रखना, और जो इडियम एक बार हो जाएगी वो दोबारा अगर होगी तो 3 का दंड लगेगा। Shivang, here we go. It is said, a friend in need is a friend indeed. ऐसा कहा जाता है, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। अमृता शिवांग दीदी, तैयार है ना? दूसरा सेंटेंस राइट ब्रेन से बनाना है बेटा। It is said that strike while the iron is hot. ऐसा कहा जाता है, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। Who is ready? I am ready. It is said, a little knowledge dangerous. सॉरी ऐसा कहा कम जाता अगेन। है, Good little knowledge, stuff. Thank you, Shivang. Power is cut here. कम अगेन नेहा दीदी। It is said, a little knowledge dangerous. सॉरी, ऐसा कहा जाता है, समथिंग इज मिसिंग। मेन थिंग इज मिसिंग बेटा। अब तो अपन उसको मेन थिंग बोल सकते हैं ना। यस सर, मेन थिंग इज मिसिंग। a little knowledge dangerous. सॉरी dangerous. दीदी, वेयर इज योर The चैप्टर? dangerous. एट डॉज इंजूस। क्या है? It is said, all that leather is not नो दीदी, gold. दीदी यू कैन नॉट चेंज। Okay. अब दीदी को 3 का दंड देते हैं, शायद उनको समझ में आ जाए। It is done. ये हो गया। Tom, Dick and Harry. पढ़ाया करो बेटा, खूब जोर जोर से आवाज आती है। Tom, Dick and Harry. अगर नेतु खेरा। The power is cut. Light गुल हो गई। It is said, a little knowledge dangerous. दीदी वेयर इज योर चैप्टर? वेरी नाइस, थैंक यू। Little knowledge. Yes. I forgot. बेटा हम इसको लिख के दिखाते हैं, बोलना ही को फिर। A little knowledge dangerous. अल्प ज्ञान खतरनाक। लगता है। A little knowledge का अर्थ हो गया अल्प ज्ञान, और डेंजरस का अर्थ हो गया खतरनाक। क्या ये पूर्ण वाक्य दिख रहा है आपको नेहा जी? जी सर। अरे वाह,